नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और स्वागत है आपका संस्कृति यात्रा के इस नए अंक में। इस यात्रा के प्रथम पड़ाव विशेष में आज चलते हैं भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा की ओर। इस यात्रा का केंद्र बिंदु है ओडिशा की प्राचीन नृत्य शैली गोटीपुआ। ओडिशा में देवदासी प्रथा के सामाजिक प्रतिरोध के बाद महिलाओं की जगह पुरुष नर्तक महिला वेश में भगवान जगन्नाथ की सेवा में अर्पित हो गए और यहीं से आरंभ हुआ गोटीपुआ नृत्य का। चेहरे और लचीले बदन के किशोरों का चुनाव करने के बाद उन्हें गुरु शिष्य परंपरा से प्रशिक्षित किया जाता है। फिर वो स्त्री वेश में प्रभु जगन्नाथ की उपासना के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोटीपुआ से ही ओडिसी नृत्य का जन्म हुआ है। पुरी के समीप बसे रघुराजपुर गांव के पट्टचित्र के अलावा गोटीपुआ नृत्य का भी प्रमुख स्थान माना जाता है। सुप्रसिद्ध ओडिसी गुरु केलुचरण महापात्रा भी रघुराजपुर गांव के निवासी थे और अपनी किशोरावस्था में एक गोटीपुआ नर्तक रहे थे। आज हम देखेंगे कि कैसे अनुशासन पूर्वक इन किशोरों को गोटीपुआ गुरुओं द्वारा नृत्य कला के साथ ही शारीरिक मानसिक रूप से सबल बनाया जाता है। इसी कड़ी में आइए देखते हैं फिल्म गोटीपुआ के कुछ रोचक अंश। Gotypua, one of the earliest dance forms of Orissa. Gotypua in Oriya means single boy. The dance recital by a single boy dressed in female costume is known as Gotypua dance. The Gotypua dance form came into existence around the second half of the 16th century during the reign of the Bhoi king Ramachandra Dev. The Devadasis, or the Mahari dance tradition, dominated the period preceding the emergence of the Gotypua style. The Devadasis were female attendants or consorts of the god and resided within the temple precincts. The philosophy behind the Gotypua dancing as a female is embedded in the cult of Shakibhava, a religious movement in which the devotees consider themselves as the Lord's consorts. The Bhoi king Ramachandra Dev established akhadas or gymnasiums in each street of the town to encourage physical culture and trained Gotypua dancers. The Gotypuas also came to be known as akhada pillars or the boys of the gymnasium. The Vaishnavas chose Gotypua dance as the purveyor of their cult. The songs in the Gotypua dance are generally the compositions of Vaishnava poets of Orissa, describing the amorous dalliances of Radha and Krishna. Mona no mani mi todi go, mona no mani mi todi. Gotypua dancers are trained in the Gurukul or the resident institutions. A Gotypua group consists of 4 or 5 members with a guru holding overall charge. The guru also sings on the harmonium or madal. Every morning in a Gurukul, the day begins with an elaborate riwaj. This is followed by massaging and various physical exercises to keep the body in perfect order. Body language dominates Gotypua dance. Especially the Bandha dance requires acrobatic feats. So, physical fitness is a must for all Gotypua dancers. A simple but nourishing breakfast keeps the dancers in perfect shape for a day-long arduous routine.
Daily rehearsals make the dancers conversant with the medium. Bantha dance is an interesting variety of the Gotipua school. This dance needs a flexible body with supple physical movements. The difficult and intricate postures make it a challenging job for the learners. Gotipua is the mother of the modern Odissi dance form, but there are some striking differences between the two forms. The costumes are similar, but other techniques vary. Here is Guru Gangadhar Pradhan. He demonstrates the differences in style and technique between Gotipua and Odissi. This is Guru Sri Pankaj Charan Das, the oldest among Gotipua gurus. He talks about the singing styles of Devadasi or Mahari tradition, Gotipua and Odissi. Monima Chakranahi God. Monima. These days, Odissi has taken the center stage of Orissa's cultural activities in India and abroad. As a consequence, an older form like Gotipua has lagged behind a little. The boys who come as disciples of Gotipua gurus are either sent by their parents or driven by abject poverty. They throng the gurukuls, which provide food and shelter. But when they reach the age of 14, they just switch over to the Odissi form, owing to its great demand and increasing popularity. This boy, a Gotipua trainee, has come to the Gurukul with his parents' consent. He is 12 years old and is totally fascinated by the medium. But what will happen to him when he steps into his 15th year? His answer is simple. He will just shift to the Odissi form. Here we have Guru Kelucharan Mahapatra, the doyen of Odissi, talking about the evolution of the Gotipua form and its future prospects. He laments the steady decline of the Gotipua dance, which will rob Orissa of one of her cultural treasures. But the Gotipua dance still lives on. The festival scene in Orissa is incomplete without the Gotipua performers. In the Jhulan festival, ringing with the monsoon melodies, or during the Chandan Yatra fete, the streets resound with the lithe movements of Gotipua artists leading the dance processions. अभी आपने फिल्म गोटीपुआ में देखा ओडिशा के मंदिरों से निकले भक्ति नृत्य गोटीपुआ के लिए नए नर्तकों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। ये गोटीपुआ गुरुओं और उनके शिष्यों की मेहनत ही है जो समय के साथ परिष्कृत होकर ओडिसी नृत्य के रूप में प्रतिष्ठित है। संगीत नृत्य की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं हमारे अगले पड़ाव धरोहर में।
हमारी संगीत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन में कई घरानों और परिवारों का विशिष्ट योगदान रहा है। ऐसे ही एक परिवार में जन्मे अयान अली बंगश ने अपने पिता पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन की शिक्षा प्राप्त की और मात्र 8 वर्ष की आयु में मंच पर एकल प्रस्तुति दी। इसके बाद वो देश विदेश में अपने पिता और पूर्वजों की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अयान अली बंगश ने सरोद का अन्य वाद्यों और संगीत शैलियों के साथ मिश्रण यानी फ्यूजन पर भी सफलतापूर्वक काम किया। आइए आज ख्याति प्राप्त फनकार अयान अली बंगश से सुनते हैं सरोद पर राग दरबारी कान्हड़ा।
सरोद की सुलहरी से आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक विस्तृत परियोजना चला रहा है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखने आज हम चलेंगे केरल के कुन्नूर जिले में स्थित आरलम गांव की ओर। कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर पश्चिमी तट पर स्थित ये गांव अपने वन्य अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, मनुष्य और वन्य जीवों के बीच परस्पर तालमेल का आदर्श उदाहरण आरलम गांव एक दर्शनीय स्थल है। तो चलिए चलते हैं आरलम गांव की ओर। पश्चिमी घाटों के हरे भरे जंगल, झरने, वन्य जीव जंतु आरलम को सुशोभित करते हैं। आरलम केरल राज्य के कन्नूर जिले के थलासरी ब्लॉक का एक सुंदर, शांत व छोटा गांव है। इस गांव का मनमोहित करने वाला प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति प्रेमियों के लिए वरदान है। ये गांव केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमा पर है। आरलम में एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो नाना प्रकार के जंगली जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर है। यहाँ पर आपको हाथी, बंदर, लंगूर और अनेक प्रकार की गिलहरियां देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ आरलम 3000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों का भी घर है। आरलम गांव का क्षेत्र मनुष्य और वन्य जीवन के बीच तालमेल बैठाता हुआ एक हरा भरा सुंदर गांव है। एडवेंचर के शौकीन लोगों को यहाँ अवश्य आना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignc@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात सनसेट टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में शामिल किए जाने का जश्न मनाया गया। इसमें दोनों ग्रंथों से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र 30 जुलाई को नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ जिसमें केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। संगोष्ठी का विषय था कालातीत ग्रंथ और सार्वभौमिक शिक्षाएं, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र का यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में अंकन। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गीता की सार्वकालिक प्रासंगिकता पर बल देते हुए कहा, तो निश्चित रूप से गीता का ज्ञान, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, कल्पना करके देखिए 2500 साल पहले ये जो देश आज दुनिया के अपने आप को दुनिया का महारथी होने की बात करते हैं और ट्वीट लिख करके अपने आप को दुनिया का जो है प्रणेता होने की बात करते हैं, वो शायद अस्तित्व में नहीं थे। उस समय भी भारत में परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर के इतना विशाल इतने विस्तार के साथ में ग्रंथ, उसके एक एक बारीकी को ग्रह लिखा गया। निश्चित रूप से प्राणी मात्र के लिए भी गीता का ज्ञान जब उसको विश्व ने स्वीकार्यता दी है गीता को, तो वो निश्चित रूप से विश्व के लिए उपयोगी होगा, उपादेय होगा। गीता का ज्ञान 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और आगे भी हजारों वर्षों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। यूनेस्को की ये मान्यता सिर्फ दस्तावेज ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा का वैश्विक सम्मान है। उद्घाटन सत्र में गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र के संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, भगवत गीता को जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रिकॉर्ड में लिया गया, रजिस्टर में लिया गया, तो निश्चित एक ऐसा उचित समय जबकि प्रयास करने पर प्रयास सार्थक भी होने का वातावरण इस समय है और प्रयासों की सार्थकता के साथ उसके सम्मान का भी समय इस समय है। पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह भी शामिल हुए। UNESCO has honored itself by including Bhagavad Gita and Natya Shastra to the UNESCO's Memory of the World
international register. सत्र की अध्यक्षता IGNC न्यास के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय ने की। गीता को आप लोकतंत्र का ग्रंथ मानिए और अगर यूनेस्को के मंच से गीता प्रतिष्ठित हो रही है तो दुनिया में जो हिंसा है, दुनिया में जो युद्ध है, उससे अहिंसा की तरफ, धर्म की तरफ, लोकतंत्र की तरफ दुनिया को मोड़ने का माध्यम गीता बनेगी और इस दृष्टि से गीता को पढ़ा जाना चाहिए। उद्घाटन भाषण IGNC के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जैसे किसी कार्यक्रम में इसे न सिर्फ स्वीकारा जाता है बल्कि प्रमाणित किया जाता है तो निश्चित तौर पर भारत की महान ज्ञान परंपरा की धाक पूरे विश्व में एक बार फिर से स्थापित हो जाती है। और स्वागत भाषण कला निधि विभाग के अध्यक्ष एवं डीन प्रशासन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने दिया। It signifies the process of safeguarding heritage, not just recognition, because once a document is nominated in the register of UNESCO Memory of the World, it has been assured to be safeguarded for the posterity forever. So at IGNC as a nodal center, nodal agency, we have been working on a lot of nomination creation. इस अवसर पर फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट टू मेमोरी नामक पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया और दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसने सभी को आकर्षित किया। गीता और नाट्य शास्त्र दोनों ही जीवन को कर्मयोग के माध्यम से जीने की शिक्षा देते हैं। एक आध्यात्मिक साधना है तो दूसरा कला की उपासना। संगोष्ठी का समापन सत्र 31 जुलाई को IGNC के समवेत सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि थे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल। इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने स्वागत भाषण दिया और 2 दिनों में हुई गतिविधियों का सार प्रस्तुत किया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से विद्वान, संस्कृति विशेषज्ञ और कला मर्मज्ञ आए और गहन चर्चा की। संगोष्ठी में ये बात उभर कर सामने आई कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज भी वैश्विक विमर्श में प्रासंगिक है और आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी बड़ी होगी। ये आयोजन भारत की सांस्कृतिक पुनर्स्मृति का प्रतीक बनकर उभरा। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में MF हुसैन गैलरी में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला दर्शन विभाग द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री बिमान बिहारी दास ने भारतीय कला, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक धरोहर विषय पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर दास ने भारतीय कला परंपरा, उसकी गहराई और विविधता पर प्रकाश डाला और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से श्रोताओं को भारतीय सौंदर्य बोध की समृद्धि से भी अवगत कराया। Bharat is such great country. It has unbeaten treasures, its contributions. No country can even beat India so far the art and culture is concerned. So you all should feel proud that you are born and brought up in such great country, that's Bharat, our Bharat. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, कला प्रेमी और शोधकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 के अंतर्गत आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम में झारखंड की सोहराई कला आकर्षण का केंद्र रही। 14 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक आयोजित इस कला उत्सव में सोहराई, पट्टचित्र और पटुआ कला के 29 कलाकारों ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कलाकारों से बातचीत करते हुए उनकी कलाकृतियों की सराहना की। उन्होंने कहा, ये कलाएं भारत की आत्मा को दर्शाती हैं और प्रकृति, पौराणिकता और सामुदायिक जीवन का सुंदर मेल है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कुमार संजय झा
और परियोजना सहयोगी सुमेधा सेन गुप्ता भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति को पारंपरिक साड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कला उत्सव से लोक, आदिवासी और पारंपरिक कलाकारों को भी एक मंच मिला है, जिन्होंने पीढ़ियों से कला के विविध रूपों को जीवंत बनाए रखा है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।